I welcome you all at Major HS Kalsis Balnoi Academy. I am Dimple Kaushik, faculty of English. Today we are going to discuss PYQ of NDA 1 2025. Let's see which type of question they have asked. We are going to discuss set A of NDA exam. First, they have given you an RC for the reading. This is the permanent question the UPSC always asks. You know, it is the fixed pattern of UPSC. They will give you one RC, synonym, antonym based questions, and sometime they will give you questions based on common errors. So there are so many questions which are permanent in nature. So we are going to discuss the RC, reading comprehension, to discuss the which type of pattern they have used. An attempt to determine the number of languages in the world is affected by other factors. They have asked you the question related to languages. In the very beginning, they generally give you an idea that which type of question they are going to discuss. And especially in RC, I would like to suggest you that while reading the RC, don't read it just like a story, है ना? Because you are not able to understand the RC if you are reading the RC just like a story. We must try to understand the hidden meaning of the RC, what they are telling you. Otherwise, you will only solve the direct questions, because in UPSC, you know, they will give you so many questions based on inferences. So, I'm going to tell you that this is the passage based on inferences. They have not given you the direct passage कि आप छोटे बच्चों की तरह, है ना, एक 6th क्लास के बच्चे को भी RC पढ़ना आता है और आपको भी RC पढ़ना आता है. What is the difference between the RC of these two classes? The only difference is that कि the class 6 student can solve the RC directly. They can read the RC and solve the questions. But in UPSC exam, they will not give you direct RC and they will not give you the direct RC based questions. So we must try to understand the hidden meaning of the passage, and that is only possible when you are able to understand the inferred meaning of the passage. So now let's see, we are going to discuss the whole RC. An attempt to determine the number of languages in the world is affected by other factors. वो कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसको देखने के लिए, डिटरमाइन मीन्स उसको अंदाजा लगाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं. अ फ्यू लैंग्वेजेस टू कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड इवन दीज डेज. आज भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डिस्कवर्ड की जा रही हैं. कुछ भाषाएं डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, कुछ भाषाएं आज भी डिस्कवर्ड की जा रही हैं. Even these days, as unexplored regions of the world begin to be opened up, आज भी बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड, मतलब अनएक्सप्लोर्ड मीन्स कि जिसको अभी तक ढूंढा नहीं गया है, खोजा नहीं गया है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आज भी आपको देश मिल जाएंगे जिनकी खोज होना बाकी है, जिनको खोजा नहीं गया है. द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, है ना. आज तक कोई भी ऐसी डिस्कवरी नहीं है जो स्ट्रेट अवे हो कि जस्ट आप गए, रास्ते में जाते जाते एक शहर मिल गया. That is impossible. कि अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, you must be ready to go for it for a long time. It will take days and months for the exploration. Okay. Often there are similarities with an already known languages which make the investigators assume that why they have found is just a dialect of that language. अब वो कह रहा है किसी भाषा की खोज करते समय उसकी बोली को भी ढूंढना जरूरी होता है, क्योंकि किसी की भी भाषा का अंदाजा आप उसकी बोली से भी लगा सकते हैं. Dear students, I would like to tell you one thing
in English they will also check your, especially in RC, they will also check your knowledge of GS sometime, है ना. The student must be able to, if they are giving you the RC based on biodiversity and you are not able to understand the meaning of biodiversity, I can guarantee you are not able to solve the RC anyhow, because they are not asking you only the RC, they are checking your general knowledge in that passage also. So what are the languages? Languages are upper part of dialects. बोली वो होती है जो छोटे स्थान पर बोली जाती है, और भाषा वो होती है जो बड़े स्थान पर बोली जाती है. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज? जैसे अभी हम बात करें तो पूरी जो नॉर्थ बेल्ट है इसमें हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन डायलेक्ट सबकी अलग अलग है ना. हरियाणा में जाओगे वहां अलग डायलेक्ट है, पंजाब में जाओगे लोगों की अलग डायलेक्ट है. तो डायलेक्ट उसी का ही शॉर्टर पार्ट है लैंग्वेज का. तो वो कह रहा है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लोगों की बोली को समझकर उनकी भाषा को समझने का प्रयास किया जा रहा है. Only after a considerable period of contact does it transpire that the speech is so different that it has to be considered a different language. अभी भी वो कह रहा है बहुत सारा इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि स्पीच इज सो डिफरेंट दैट इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट लैंग्वेज. जो स्पीच, जो बात हम बोलते हैं, क्या वो डायलेक्ट है? नहीं. Speech is not a dialect. Dialect is the part of language and it is going in the same family for a long time. किसी भी परिवार में उसकी बोली, उसकी पहचान होती है, बोली से समझ जाते. कोई किसी के घर आप गए, if they are their dialect is Punjabi, you will be able to understand they बिलोंग टू पंजाब, है ना. तो वो जो बोली है वो उनकी भाषा को बताती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बोली से आप उसकी जो है स्पीच को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्पीच इज जस्ट अनदर वे ऑफ टॉकिंग. आप आपस में दोस्तों से बात करते हो तो वो आपकी डायलेक्ट नहीं होती, वो आपकी स्पीच होती है. ठीक है. इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे. अब वो सर्वे तक पहुंच गया टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स. देख रहे हो, अब ये जो ऑथर है इसको यहां तक तसल्ली नहीं है. अब इसने क्या किया कि इसने सोचा एक सर्वे करते हैं, फैक्ट का पता लगाते हैं कि बोली और भाषा में क्या फर्क है. एंड देयर आर स्टिल मैनी कंट्रीज वेयर सच सर्वे आर इनकम्प्लीट एंड हैव नॉट इवन बिगन. अब वो कह रहा है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज भी ये सर्वे इनकम्प्लीट है, जिसमें बोली और भाषा के बारे में पता लगाया जा रहा है कि कितनी बोली हैं और कितनी भाषाएं हैं. अभी तक आपको पैसेज पढ़कर इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि इन दिस पैसेज दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेजेस एंड द डायलेक्ट्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल इन मैनी कंट्रीज. सो दिस इज ओवरऑल द पैसेज. द पीपल मे बी नॉन बट द आइडेंटिटी ऑफ द लैंग्वेज मे नॉट बी. कह रहा लोगों को तो पहचान मिल जाती है, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बोली को पहचान नहीं मिल पाती है. आपसे पूछा जाए आप कहाँ से हैं तो आप कह देंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम चाइना, है ना. उनकी भाषा को पहचान नहीं मिल पाती है, लोगों को पहचान मिल जाती है, जबकि उनकी भाषा को भी उतनी ही पहचान मिलनी चाहिए जितनी पहचान उन व्यक्तियों को दी जाती है. बिकॉज मैनी सच पीपल्स आर बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल. लोगों को पहचान मिल जाती है लेकिन उनकी भाषा को पहचान नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल मोर देन 2 लैंग्वेजेस. आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब उनको इंग्लिश भी आती है, चाइनीज भी बोलनी आती है, जापानीज भी बोल लेते हैं. सो दे आर मल्टीलिंगुअल. कि वो कह रहा है लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर मान लो कोई लड़का है उसकी जॉब स्वीडन में लग गई, तो वो स्वीडन में जाएगा तो इंग्लिश बोल लेगा, इंडिया में वापस आके हिंदी बोल लेगा, तो उसका ये नहीं पता लग पाया कि वो कौन से देश से है ना. तो मल्टी लैंग्वेज होने के कारण लोगों के देश की आइडेंटिटी नहीं हो पाती. एंड कन्वर्स विद आउटसाइडर इन लिंग्वा फ्रैंका. अब वो लिंग्वा फ्रैंका क्या है, कह रहा है कि वो जो आउटसाइडर्स होते हैं उनसे बात करते समय लोग क्या करते हैं, जनरली जो उनकी जैसी भाषा सामने वाला बोल रहा होता है वैसी ही भाषा वो बोलना
स्टार्ट कर देते हैं। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स द लैंग्वेज विच अदर इज यूजिंग, यू विल कंटिन्यू टू यूज दैट लैंग्वेज। जो भाषा वो बोल रहा है वैसी भाषा आप बोलने लग जाते हैं, इसलिए आपको आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है। आपकी बोली के कारण लोग पहचान नहीं पाते कि आप कौन सी स्टेट से हो, कौन सी कंट्री से हो। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बालनो एकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स के बच्चे आते हैं, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम इवन इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक देयर डायलेक्ट, बट आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो बच्चे क्या है, अगर इफ आई एम टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश दे विल टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम विच स्टेट दे आर। सो दिस इज द थिंग दैट इफ द पर्सन इज मल्टी बाइलिंगुअल और बाइलिंगुअल, multilingual, then we are not able to understand the identity from which state he or she is. Okay. Then next, it may take a while before linguists come to realize that there is an ethnic language at all. वो कह रहा है linguist कौन होता है? A person who use more than one language, है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं। लिंग्विस्ट मीन्स एक्सपर्टाइज इन मैनी लैंग्वेजेस। बहुत सारे पर्सन लोग क्या होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। उनकी मल्टी लिंग्विस्टिक होने के कारण हम उनकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाते हैं। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस बार एनडीए का एग्जाम बहुत, इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूं तो English section was not at all difficult in NDA exam. They have just given you the same question as they are asking you, one RC and then para-jumbled in the form of S1, S6, and they have given you some synonyms, some they have asked you some fill in the blanks. So this is just a general paper as they use the pattern, है ना। So you have no need to worry. There are 4 to 5 fixed topics which you must gone through in NDA exam. One is RC, reading comprehension. Second is fill in the blanks. Third is para-jumbled. Fourth is common error, and fifth is, this time they have given you narration and para-jumbled in the form of S1, S6. So you can easily solve 40 to 45 questions out of 50 while you are solving the English section. That's my guarantee. If you will take coaching from Balno Academy, I can give you the guarantee of that कि you can easily solve 40 to 45 questions out of 50 in my section in English. Okay. Which one of the following is not the reason for the difficulty in estimating the number of languages of the world? वो कहता है इनमें से कौन सी ऐसी difficulty, not the reason for the difficulty of estimating the number of languages of the world, कि किसी भी देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इसके बारे में पता नहीं लग पाता है, इसका क्या कारण है, क्या नॉट द रीजन, इनमें से कौन है जो उसका रीजन नहीं है। न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन, न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ नॉन लैंग्वेज, इसका कोई लेना देना नहीं है दो ऑप्शंस का क्वेश्चन से। अब बात करते हैं, हमारे पास बच गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन जी। न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज, जो लोग भाषा बोलते हैं वो उसको क्लेम नहीं करते हैं कि ये भाषा मेरी भाषा है, क्योंकि वो मल्टी बाइलिंगुअल होते हैं तो उस कारण वो ये नहीं बता पाते कि मेरी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a way to establish the discovery of new language? इनमें से कौन सा एक तरीका है किसी नई लैंग्वेज को ढूंढने का? By establishing contact over a period of time with the speakers of language, सदियों तक हम कुछ लोगों से मिलते रहते ताकि उनकी भाषा का पता लग पाता? Not at all, this is the answer. By finding the similarities of the language with other language, एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए? नहीं, वो कह रहा है कौन सा तरीका है जिससे हम किसी नई भाषा के बारे में पता कर सकते थे। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द राइट आंसर इज
बाय कंपेयरिंग विद द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द रीजन. लिंग्वा फ्रैंका तो होता है जनरल स्पीकिंग, हम एक दूसरे से किस भाषा में बात करते हैं. बाय कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन, एक सर्वे कंडक्ट करवाना चाहिए जिससे पता लग पाए कि लोगों की भाषाएं कौन सी हैं, कौन सी भाषा लोगों को पसंद है, कौन सी भाषा में लोग ज्यादातर बात करते हैं, और जिस भाषा में वो बात करते हैं क्या वही भाषा उनकी अपनी भाषा है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है ना. कभी भी बच्चों इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन दिखे तो उसमें आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस टाइप का जो आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले वी विल ट्राई टू एलिमिनेट द टू थिंग्स, है ना. दो चीजों को हम एलिमिनेट करेंगे ये देखने के लिए कि कौन सा इनमें से नहीं है. तो कौन सा नहीं है तो पक्का 4 में से 2 होंगे जो हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछ रहा है. लैंग्वेज सर्वे हैव बीन कंडक्टेड बाय द नेशन. क्या लैंग्वेज सर्वे देशों के द्वारा किया जा रहा है या किया जा चुका है. देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज टू बी डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड. दिस शुड बी एलिमिनेटेड. कोई भाषा नहीं है जिसको आज तक डिस्कवर्ड किया हो. ऑल द लैंग्वेजेस आर आइदर कंप्लीट लैंग्वेज और डायलेक्ट्स ऑफ. नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर्ड सिंस ऑल लैंग्वेजेस आर नॉन टू द वर्ल्ड. कोई नई भाषा ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी भी देश के बारे में जानने के लिए. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट question number 4 and 5. The people may be known but the identity of their language may not be. लोगों को जाना जा सकता है लेकिन उनकी भाषा को नहीं. कैसे पता लगाएंगे. The people may be known but not their identity. लोगों को जाना जा सकता है लेकिन उनकी भाषा को नहीं. तो कैसे पता लगेगा. पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स बट नॉट नेसेसरी देयर लैंग्वेज. लोगों को उनके पहनावे से हम पहचान सकते हैं. किसी ने अगर घाघरा और चोली पहना हुआ है तो समझ जाते हैं दे आर फ्रॉम राजस्थान, है ना. तो वहां पर हम लोगों के एथनिक वियर से, उनकी वेशभूषा से उनको पहचान लेते हैं लेकिन उनकी भाषा से उनको नहीं पहचान पाते हैं. पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड देयर लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड. People are not recognized as different ethnic groups, so are their language. Because the people are not from different ethnic groups and their language is recognized. Which option do you think is the right answer? लोगों को हम उनके कैसे पहचान सकते हैं. People are recognized as different ethnic groups but not necessarily their language. लोगों को तो उनके ethnic wear से पहचान सकते हैं, ethnic group से पहचान सकते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज को नहीं पहचान सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स कम टू बी नॉन. पहचाना जाए, जाना जाए, है ना. ट्रांसपायर अभी हमने पढ़ा था एक वर्ड पैसेज में कि इट ट्रांसपायर मतलब इट कम्स टू बी नॉन एज देयर लैंग्वेज. सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, that is convert the direct speech to indirect speech. First time the UPSC asked these questions in ND exam because these are the questions of CDS exam. They generally give you a direct indirect speech and sometime they give you voice based question, but that is the pattern for CDS exam. But this is the first time they have given you questions based on this. Okay. Charu said to her friend, I want you to be here at 6 p.m. tomorrow for the meeting. इसमें मैं बच्चों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाती हूँ जिसमें मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमें वर्ब से वर्ब को पकड़ना है. want का wanted हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी पास्ट इंडेफिनिट. want का wanted हो जाएगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा. सेकेंड एक्शन ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास. अब देखते हैं टुमारो का टुमारो लिखा है, सो द राइट आंसर इज ए.
Question number 7. Convert the following direct speech to indirect speech. Nitin said to his brother, "What a beautiful painting it is." फिर से हम देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है. अगर यहाँ is लिखा है तो आंसर में आपके पास देखना है कि was कितने ऑप्शन में है हमारे पास. सो लेट्स चेक. फर्स्ट ऑप्शन में was है, देन बी ऑप्शन में हमारे पास was है, सी ऑप्शन में भी was है, नहीं है, और डी ऑप्शन में एक ऑप्शन हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया. व्हाट जो होता है वो इट में कन्वर्ट हो जाता है. व्हाट को हम नरेशन बनाते समय क्या बना देते हैं, इट. और इंटरोगेटिव तो था नहीं, दिस वाज द एक्सक्लेमेटरी है ना सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, उसको अफर्मेटिव में लाते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें हम सारा कुछ जितना भी हम लिखते हैं वो सारा अफर्मेटिव में चेंज करते हैं. तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी है. इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. नितिन आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर इट वॉज. वेदर नहीं आएगा कि वेदर इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. सो द राइट आंसर इज कि आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट करते हैं. नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर. नो. What a beautiful painting it was. ए ऑप्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वट का वट है, जबकि हम नरेशन में क्या करते हैं, वट को इट में चेंज करते हैं. अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी, सी एंड डी. बी, सी एंड डी में हमने इट इज वाले को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है. नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर. नितिन वंडर्ड before his brother that it was a beautiful painting. Whether it was asked his brother whether it was a beautiful painting. So the right answer is option D, क्योंकि before word हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The teacher asked her student why they had been. मैं एक शॉर्ट ट्रिक कराती हूँ नरेशन में कि आपको वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना है. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देखेंगे, आपको पता है कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक करा रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट continuous, past perfect continuous, past perfect no change, past perfect continuous no change, will would में change हो जाता है, shall should बन जाता है, is a मार का was were हो जाता है, was were का had been हो जाता है, was were का had been हो जाता है. दे के साथ was तो आएगा नहीं, तो क्या आ गया, were. 4 ऑप्शन में ढूंढेंगे हमारे पास were कहाँ है. ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, वर्ड से हम यहाँ तक पहुंच गए. आप देखते हैं द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन. ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच को हम किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में. द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई वर दे कीपिंग क्वाइट. व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास को प्रीवियस क्लास रखा हुआ है, वैसे यहाँ क्वेश्चन में लास्ट क्लास होना चाहिए था. अगर लास्ट क्लास होता तो वो प्रीवियस क्लास खुद बन जाता. ठीक है, व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास. जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि तीनों के आंसर आपको सेम लग रहे हो, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ेंगे. द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, द टीचर सैड टू हर स्टूडेंट. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आस्क्ड हर स्टूडेंट का आस्क्ड हर स्टूडेंट नहीं रह सकता. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेट टू को आस्क्ड बनाया होगा, तो इट मीन्स ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया. आप देखेंगे द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास. व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास. द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट इन द प्रीवियस क्लास. ऑप्शन डी में द नहीं है, देख रहे हो, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास द था. ऑप्शन डी में हमारे पास द नहीं है, जबकि ऑप्शन बी और डी लगभग सेम है, लेकिन एक में हमारे पास इन द प्रीवियस क्लास है, एक में इन प्रीवियस क्लास है. सो द राइट आंसर इज बी. ओके, चलिए देख रहे हो कितना सिमिलर ऑप्शंस हमारे पास आंसर में होते हैं, तभी तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में. नाउ इट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 9.
Which one of the following sentence is correct? These questions were based on grammar actually. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा पैटर्न यूज किया है इस बार यूपीएससी ने कि दे आर आस्किंग यू द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस इन डिफरेंट पैटर्न. जनरली दे गिव यू कॉमन एरर, and in the last 2-3 years they were asking you parts of speech based question, but this time they have given you something different like common error based on 4 options. You have to select the right statement out of the given 4 statements. Okay, so we will discuss this also. In question number 1, what they are saying, he is considered as the, सबसे पहले हम लोग 4th ऑप्शन देखते हैं. He is considered as one of the intellectual in the country. Considered as one of the intellectual in the country. He is considered as one among the brighter. Brighter among के लिए क्या होना चाहिए था यहाँ पे? Brightest, because superlative degree is used, है ना, जब सब में से एक की बात हो. He is considered as one among the brightest intellectual in the country. He is considered as the brightest intellectual in the country. He is considered as one of the intellectual, one of the intellectuals. आप लोगों को noun pronoun वाला चैप्टर याद होगा. One of the boys, one of the girls, one of the books, one of the copies. So one of the intellectuals. Option D हमारा eliminate हो गया. Now we are left with option A and B. He is considered as one among the brightest, nahi, as the brightest intellectual in the country. Now, question number 10. Which one of the following sentence is correct? No other mountain is taller than. बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है THAN, then. Not we will use THEN, then. Dear students, you must keep your eyes open. Your intellect must be higher in the competitive exams, because this is not the exam of knowledge, this is the exam of intellect. Thousands of students appeared for exam many times. In every exam, in competitive exam, lakhs of students appeared. But what make them different? Those who have good IQ, those have good common sense, they will mark so many questions without having actual idea of the pattern, है ना. So this is the game of the competitive exams. You must keep your eyes open. THEN, then. आधे बच्चों को ये दिखाई नहीं देगा कि THAN होना चाहिए when हम no के साथ, all के साथ, any के साथ other यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है ये स्ट्रक्चर. no other, any other, all other. So what we will do? taller than. अब देखते हैं यहाँ पे no other mountain is tall. tall नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? taller, है ना. तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया. no other mountains is taller than. यहाँ पे तो वर्ब भी नहीं है, is am are कुछ तो आएगा, ए भी एलिमिनेट हो गया. So we left with the option A. Now it's turn to question number 11. बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये CDS एग्जाम के. Generally these are the questions asked in CDS exam, but if they are giving you such questions, you must go through the previous year papers of CDS. I always suggest to the NDA student that they must appear for the CDS question paper. They must solve the last 5-year question paper of CDS, because you will have some idea of their pattern, and in NDA exam they are using the same pattern. ये CDS में हर बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन. कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, है ना. कॉन्फिडेंट सबको पता है, बहुत फेवरेट छोटा सा वर्ड है ना. और खास तौर पे क्या होता है कि अगर आपको एक वर्ड का भी मीनिंग बहुत अच्छे से पता है, जैसे कॉन्फिडेंट, मान लिया कि आपको कॉन्फिडेंट DANT वाला नहीं भी पता है, आपको ये पता है कॉन्फिडेंट मीन्स बिलीफ नहीं होता है. कॉन्फिडेंट क्या होता है? ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट एक नाउन है, तो कॉन्फिडेंट वर्ड से ही पता लग रहा है कि इट इज वेरी सर्टेन, इट इज वेरी लायबल, है ना, इट इज वेरी रिलायबल, इट इज वेरी
approved. Confident also means बोलते हैं ना, this news is confident, keep it separate, कि ये बहुत certain news है, बहुत reliable news है, don't spread it here and there. So confident generally means certain. अब हम देखते हैं confident का meaning certain हमारे पास, तो ऑप्शन में आ गया। बच गया क्या हमारे पास, ये देखो कितनी बुद्धिमता की है इन्होंने, यूपीएससी वालों ने। देख रहे हो बच्चों, कॉन्फिडेंट में DENT और DANT, जिस बच्चे को नजर का धोखा थोड़ा सा भी लगा तो समझो उसका पेपर गया, क्योंकि नजर का धोखा आपका पेपर फेल करवा देता है बहुत बार। अभी देखो उधर हमने क्वेश्चन पढ़ा, THEN देन नहीं होता, THAN होता है। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग DANT वाला जान के इन्होंने पहले रख दिया, जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो सीधा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, द राइट आंसर इज ए। ब्रॉक और ब्रूक, है ना, ब्रूक बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रूक मतलब होता है रिवर, है ना। ब्रूक वॉज गोइंग थ्रू द माउंटेन्स, एक नदी पहाड़ों को चीरती हुई जा रही थी। तो ब्रूक का अगर मीनिंग आपको ये वाला भी देखो, इसमें क्या होता है, 2 words are given to you, you must even know the 1 word। एक शब्द का भी मीनिंग पता, देन यू कैन गो टू द ऑप्शंस। तो सीधा डायरेक्ट ऑप्शंस पे चले जाएंगे। ब्रूक मीन्स होता है रिवर, ओके। अब यहाँ रिवर वाली सेंस में देखते हैं कहाँ हमारे पास ब्रूक यूज हुआ है। स्ट्रीम, ठीक है, नॉनसेंस ये नहीं है। अब बात करते हैं ब्रूक। ब्रूक मीन्स, यहाँ पर उल्टा लिख दिया इन्होंने, ब्रॉक मीन्स अबेंडेंस। यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रूक मीन्स अ फ्लोइंग वाटर बॉडी। तो ब्रूक मीन्स फ्लोइंग वाटर बॉडी नहीं होता, ब्रूक मीन्स सीधा होता है नदी, स्ट्रीम, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर आपको खुद से भी प्रिपरेशन करनी हो तो होमोफोन्स एक चैप्टर होता है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। होमोफोन्स मतलब होता है, होमो मतलब सिमिलर साउंड, फोन्स मीन साउंड, होमो मतलब सिमिलैरिटी। तो होमोफोन्स एक चैप्टर होता है, वहां से ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, कुछ सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना, है ना। एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट के सिवाय, के अलावा, बच्चों को मैं जब प्रपोजिशन पढ़ाती हूँ देन आई ऑलवेज टोल्ड देम कि एक्सेप्ट यू नोबडी कैन डू इट, तुम्हारे अलावा कोई एनडीए पास नहीं करेगा। ऐसा सोच के एनडीए एग्जाम की तैयारी करनी है, ऐसा सोच के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सो द राइट आंसर इज एक्सेप्ट मीन्स कंसेंट भी होता है, स्वीकार करना, अप्रूवल भी बोलते हैं इसे। तो एक्सेप्ट मीन्स पार्ट नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ड दिखाई दे रहा है कंसेंट, एंड एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, किसी एक चीज से अलग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्ड, है ना, एंड एक्यूड। अकॉर्ड मतलब होता है सहमति, और एक्यूड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये V3 है, इकट्ठा करना, ओके। एक्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्यूर की, और अकॉर्ड मतलब होता है सहमति। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका मीनिंग कहाँ पे बनता है हमारे पास, सहमति। अकॉर्ड मीन्स कलेक्टेड, अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड मीन्स एक्सेप्टेड, एंड इकट्ठा करना मतलब एक्यूमुलेटेड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गारंटी एंड वारंटी। कभी आपने देखा, इवन हम एक एसी भी परचेज करते हैं ना, तो दुकान वाले से पूछते हैं भैया इसकी गारंटी क्या है और इसकी वारंटी क्या है। गारंटी मतलब कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला बहुत बार आपको ये कहता है कि एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा, आप ये फोन ले जाइए, इसकी 3 इयर्स की गारंटी है, 3 साल तक अगर ये फोन टूटता है, खराब होता है, तो एज इट इज आपको ये फोन, हम फोन के बदले में फोन वापस कर देंगे, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और वारंटी मतलब होता है जब आपको वो कहते हैं कि 3 साल तक इसकी वारंटी है, हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम आपको ठीक करके दे देंगे। अगर ये फोन खराब हो गया तो 3 साल के अंदर अंदर हम ये फोन कभी भी जब आपका खराब होगा, आप 2 दिन के लिए हमारे पास छोड़ देना, हम इसको ठीक करवा के वापस देंगे। तो गारंटी मतलब क्या होता है कि आपको रिप्लेसमेंट की गारंटी, और वारंटी होता है सर्विस की गारंटी होती है, ठीक है। तो इट इज अ वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी इज अ प्रॉमिस, business agreement, guarantee is an agreement, guarantee is a promise, warranty is a service contract, acceptance नहीं होगा, सी आंसर है इसका।
ठीक है, गारंटी इज अ प्रॉमिस एंड वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको ये पेपर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन मैनी वेज एंड यू विल लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम माई साइड एंड आई एम ऑलवेज योर फ्रेंड, योर teacher, your mentor, to help you out for NDA exam journey, because I always try my best to give my 100% to the students, and I always try to be a helping hand to the students. The Constitution of India ensure proportionate representation from all the regions. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये एंश्योर करता है। एंश्योर मतलब आपका ना वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है एग्जाम का, एनडीए सीडीएस दोनों के लिए, तो मुझे लगता है विदाउट हैविंग गुड वोकेबलरी यू आर नॉट इवन एबल टू सॉल्व द सिंगल क्वेश्चन, सो यू मस्ट पे मच अटेंशन ऑन योर वोकेबलरी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर, एंश्योर मतलब प्रॉमिस, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द रीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, वो सबको एक प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल है ना, इक्वल या बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि भारत के संविधान में सभी लोग बराबर हैं, भारत के संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। सफरेट क्या होता है, ये होता है वुमेन struggling for voting right। कोई वुमेन है उसको वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, there is a feeling of disenchantment, there is a feeling of disenchantment among the members of the group, है ना। कभी भी किसी भी वर्ड में जब ये डिस वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब होता है नॉट। डिस मतलब नॉट, या अनइंटरेस्टेड मतलब भी नॉट होता है। तो वो कह रहा है एक फीलिंग है लोगों के अंदर डिसएंचेंटमेंट की, किस कारण, अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आइडियलिज्म इसका कहीं दूर दूर तक ऑप्शन नहीं बन रहा, क्योंकि आइडियलिस्टिक होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है ये। डिलाइट भी एक पॉजिटिव वर्ड है ना। जब ऑप्शन में हमारे पास कुछ बोला गया है, सिनोनिम्स ढूंढने हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम। सो द राइट आंसर इज disappointment. She believed that it was imminent that he would be chosen as the leader of the group. वो कह रहा है कि it was imminent that he would be chosen as the leader of the group. Imminent होता है in coming future, in near future, आने वाले समय में उसको बहुत खुशी है इस बात की कि उसको एक नेता चुना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको रोका ना जा सके, है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कोई ऐसी घटना जिसे चाह कर भी रोका ना जा सके। इनडायलेबल, इनडायलेबल होता है बोलते हैं ना कि चाइल्डहुड मेमोरीज आर इनडायलेबल, जो हमारी बचपन की यादें होती हैं। कभी देखा आपने कि जब आप 1 साल के थे, आपकी मम्मी को अचानक से वो 1 साल वाली फोटो मिल गई और मम्मी आपको दिखाती है कि देखो बेटा आप 1 साल में कितनी शरारतें करते थे, कितने शरारती बच्चे थे। तो वो इनडायलेबल इम्प्रिंट्स होते हैं हमारे माइंड पे, जो कभी भी हम भूल नहीं पाते हैं, कभी भी चाहकर भी हम उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो इनडायलेबल इम्प्रिंट्स ऑफ इन आवर माइंड क्या होता है कि जो ऐसी यादें जिनको हम भुला नहीं सकते। तो इनडायलेबल क्या होगा, imprints that cannot be erased, cannot be erased, कुछ ऐसी चीजें जिसे हम मिटा नहीं सकते। सो ये रहा। सो द राइट आंसर इज, हिलेरियस तो होगा नहीं, फ्लीटिंग नहीं होगा, परमानेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इन स्टेंटियस रिप्लाईज टू ऑल द क्वेरीज। अब यहाँ वर्ड से पता लग रहा है, कभी आपको सेनोनिम ना पता लगे ना, एडजेक्ट सेनोनिम, तो आप वहां ये देखो कि कुछ सेंस क्या है उस क्वेश्चन की। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कह रहा है कि इंस्टेंसियस मतलब इंस्टेंट होता है। ये जल्दी जल्दी मैनेजर ने क्या दिया, तुरंत रिप्लाई दिया, फटाफट से जवाब दिया, तो इमीडिएट।
So the right answer is immediate. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 to 25. ये पैराजंबल जनरली सीडीएस एग्जाम में इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं. फर्स्ट टाइम दे हैव आस्क्ड यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ S1 एंड S6. इसमें हम डायरेक्ट आंसर्स बता देते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि इट इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग. सो क्वेश्चन नंबर 21, द राइट आंसर इज, इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पे कभी किसी लाइव क्लास में भी समझाऊंगी. इसमें हमें क्या करना होता है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, या तो S1 से कनेक्ट करना है स्टेटमेंट को. S1 मतलब उसकी नेक्स्ट लाइन और S6 मतलब उसके पहले वाली लाइन. अगर आप 6 की 6 लाइन अरेंज करोगे ना तो ये आपसे अरेंजमेंट कभी नहीं होगा, पूरा पेपर वहीं पड़ा रह जाएगा. इससे बेटर है कि आप या तो S1 से कनेक्ट करो या S6 से उसको उठाओ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21, द राइट आंसर इज C. देन क्वेश्चन नंबर 22, question number 22, the right answer is D. question number 23, एक शॉर्ट ट्रिक अभी मैं आपको पैराजंबल्ड में कराऊंगी, वो शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगा आपके इस वाले पार्ट में भी. क्वेश्चन नंबर 23, the right answer is they bear. Question number, the right answer is A. Question number 24, the right answer is A. And then question number 25, the right answer is D. Okay, so we are moving to the next part. This is some grammar based question. They have asked you to judge your knowledge of voice, to judge your knowledge of conjunction and modals and adverb based questions. Okay, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मुझे लगे जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं. अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स आते थे बेस्ड ऑन preposition एंड modals होते थे, बट दिस टाइम दे हैव गिवन यू फ्रेजल verbs जनरली एंड दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम phrasal verbs. ठीक है. Dash your transfer request is concerned, we will be discussing it at the next meeting, है ना. Talking about, एकदम ऐसे ऑप्शन है कि देखते ही पता लग रहा है. Talking about, by the way, as far as होता है जितना दूर तक आप सोच सकते हैं. So the right answer is टू बिगिन विद. ये फ्रेज होता है किसी चीज की शुरुआत करना. बाय द वे होता है, ओ बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो ना. तो यहाँ अच्छा वाली कोई बात नहीं है कि अच्छा योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट मीटिंग. ये कुछ एक फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है. एज फॉर एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न. डैश डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब. बाय द वे यू नो, क्या तुम्हें पता है कि रवि ने अपनी नई जॉब ज्वाइन कर ली है. क्या तुम्हें पता है कि रवि अपनी नई नौकरी करने जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 and 29. Dash the wind, it was getting stronger and I was getting colder. जैसे जैसे हवा तेज हो रही थी वैसे वैसे मुझे अधिक ठंड महसूस हो रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ द विंड, मैं हवा के बारे में बात ही कर रहा था कि मुझे दिखा कि एकदम से तेज हवा बहने लगी और मुझे ठंड लगने लगी. डैश व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम. एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम बोलते हैं ना. हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम. बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे ना आप देखेंगे बहुत ही सिंपल 10 क्वेश्चंस थे. मुझे लगता है जिस बच्चे को इंग्लिश वो स्पेशली एनडीए के लिए तैयार नहीं भी होके गया है ना, तब भी ये 10 क्वेश्चंस उसने इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे, चाहे कोई भी बच्चा हो. बहुत इजी पैटर्न था इन 10 क्वेश्चंस का स्पेशली. क्वेश्चन नंबर 30. Dash, an unhappy childhood leads to criminal behavior. In some cases,
बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जिसका बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो खराब होता है, तो ऐसे में वो बच्चा जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 32. Dash, the problem is nothing but a wrong assumption about the process. In other words, the problem is in the meanwhile. Somewhat और ये तो होगा नहीं. In the meanwhile, the problem is nothing. In other words, the right answer. ठीक है. Many dash hesitate to publicity brought such questions for fear of nurturing discrimination. वो कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये आवाज उठाई, ब्रॉच मतलब टू रेज, किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करना, टू रेज द क्वेश्चन, सच अ क्वेश्चन, है ना, फॉर द फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन, अंटिल नहीं होगा, ये टाइम के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स, मैनी के बाद ऑफ कोर्स कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, कि मैनी के बाद हम लिख रहे हैं ऑफ कोर्स भी नहीं होगा। डिस्पाइट होता है इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अंडरस्टैंडेबली हेजिटेट टू, इसको हम छोड़ देते हैं ऑफिशियल आंसर की के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है Dash, one notes that in the 19th century an important development of reflection and questioning gained movements, particularly generally speaking. The right answer is generally speaking. Question number 34, 35. 34 है Dash, the situation has completely transformed over the past few years. बहुत सारे लंबे समय से हमने देखा है कि यहाँ पे आएगा 10 जो होता है वो बताता है फाइनली। ऐसे ही नेक्स्ट, द डैश कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव मीटिंग। हेंस मतलब एट लास्ट, बट होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेटर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब ये सारे क्या हैं, सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस बार इन्होंने वोकैबुलरी पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है यूपीएससी बोर्ड ने। दे आर गिविंग यू सम डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी दिस टाइम। साइनेश्योर क्या होता है, बहुत बार ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी वगैरह वाले बच्चे भी याद करते हैं। साइनेश्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनेश्योर मीन्स सेंटर ऑफ attraction, person or thing that causes a change, person or thing that attracts a lots of attention। सीधा डायरेक्ट इसका ऑप्शन दिया हुआ है। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस की ना एक खासियत होती है कि बहुत ज्यादा ना इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना होता, या तो आता है या तो छोड़ देना है बस। मैं क्लास में भी बच्चों को यही बताती हूँ कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन में यू हैव नो नीड टू पुट टू मच एनर्जी देयर, आइदर यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन अदरवाइज लीव इट। ओके, नेक्स्ट इज कॉवियल। व्हाट इज कॉवियल? अच्छा, कॉइवल, कॉइवल होता है कि कोयल जैसा, है ना। कॉइवल को ऐसे याद रखेंगे, कोयल जैसा। तो सेम एज, जब कोई व्यक्ति जो आपके जैसी बात बोले, आपकी उम्र का हो। पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, नहीं। टेकिंग सेंसस, कोऑपरेट रफली एट द सेम एज। रिट्रोग्रेशन, रिट्रो कभी भी रिट्रो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है बैक, इसका मतलब होता है पास्ट। री, किसी के एग्जाम में जब री आ जाता है, मैं सुपरफ्लुअस एरर में बच्चों को पढ़ाती हूँ, री मतलब क्या होता है बैक, है ना। कहते हैं ना तुम्हारी री आ गई है पॉलिटिकल साइंस में, तो री मतलब बैक, तो रिट्रो मतलब बैक, कुछ पुराने समय के बारे में हमें सोचना है। देखते हैं क्या ऑप्शन है इसका। रिट्रो, रिटर्न टू अर्ली स्टेट, वापिस उसी अवस्था में पहुंच जाना। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड को आप ऐसे याद रखेंगे कि इम्प्रेशन, है ना। इम्प्रेस्ड को हम कैसे याद रखेंगे कि वी मस्ट हैव सम मनी इन अवर पॉकेट टू इम्प्रेस समवन। किसी को खुश करने के लिए आपके पास कुछ थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं और अब वो जो 2 फ्रेंड हैं उन्होंने आपको कह दिया कि चलो आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा वहां पे। तो यहाँ पे हम इम्प्रेस्ड को ऐसे याद रखेंगे, इम्प्रेस्ड मतलब इम्प्रेशन, और इम्प्रेशन जमाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। ठीक है। टारगेट, टारगेट, टारगेट मतलब होता है
इसका मुझे हंसी आ रही है सोच के। टारगेट मतलब होता है कि किसी का तोरी जैसा चेहरा होना, है ना। टारगेट मीन्स तोरी जैसा चेहरा होना, तो बोलते हैं कि उसको जो उसका फेस है वो तोरी जैसा दिखाई दे रहा है, स्वॉलन और डिसइंटेंटेड, कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सूजा हुआ चेहरा है। ओके, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 40. Now we are going to solve some fixed questions of para-jumble. These are the favorite questions of UPSC exams. They will definitely give you such questions. In these type of question, I usually tell a trick to the students. Which trick we will use? किसी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं लिखते हैं वो इस फॉर्मेशन पे होती है, SVO, एस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन होगा या आर्टिकल होता है या प्रोनाउन हो सकता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ इंग्लिश, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपने डायरेक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आई कैन गारंटीड यू 10 out of 10 इन दीज क्वेश्चंस इफ यू फॉलो दैट पैटर्न फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, SVO में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। या तो कोई जनरल स्टेटमेंट होगी या यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी या ऐसी स्टेटमेंट जिसकी शुरुआत नाउन से, प्रोनाउन से या आर्टिकल से हुई है, वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले हमने उसको ढूंढ लेना है और अगर वो हमारे पास मिल गई तो उसके बाद हमारी आधी डिफिकल्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, सीधा ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है ना। कुड नॉट फाइंड, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। पार्टिसिपेट इन द फंक्शन हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता ही लग रहा है वहां पे स्टेटमेंट देख के। क्या बच गया? द ऑडिटोरियम वॉज ओवर क्राउडेड, मैनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू द ऑडिटोरियम वॉज ओवर क्राउडेड। अच्छा, मैनी ऑफ द पीपल हु हैड come to participate in the function could not find a seat because the हाँ ठीक है। अगर आपको कभी फर्स्ट स्टेटमेंट ना मिले तो हम क्या करेंगे, उसका कंपलसरी पेयर बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट जल्दी से नहीं पहचान पा रहे तो हम कंपलसरी पेयर देखेंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, could not find a seat because the auditorium was overcrowded, could not was able to find a seat because the auditorium was overcrowded। एस के साथ आर कहाँ है देखे सब बच्चे, एस के बाद आर, एस के पहले नहीं, एस के तुरंत बाद आर, एस के तुरंत बाद आर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको दो शॉर्ट ट्रिक सिखाए हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधा पैराजम्बल्ड में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या आर्टिकल होगा या प्रोनाउन होगा। अगर वहां से हमारा क्वेश्चन नहीं एलिमिनेट हो पाया तो हम कहाँ चले गए, कंपलसरी पेयर बना लिया हमने। कंपलसरी पेयर का बन गया एस और आर। यहाँ देखा एस और आर नहीं है, एस और आर एक साथ नहीं है, है ना, आर एस है। इसमें देखेंगे एस और आर तो है, लेकिन ये बीच में पी कहाँ से आ गया। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। दो शॉर्ट ट्रिक हैं जिनके ऊपर बेस्ड मैं ये क्वेश्चन बच्चों को हमेशा करवाती हूँ। क्या है, ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ शी न्यू दैट द आंसर टू हर क्वेश्चन। ये हमारे सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, किसी भी एंगल से ये हमारे क्वेश्चन के सब्जेक्ट नहीं है। हमारा क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, शी न्यू दैट द आंसर। कौन शी? We always use pronoun to replace a noun. If there is a no noun, we cannot use pronoun. So subject should be R. R से कितने ऑप्शन है हमारे, A और D। अब तुरंत चेक करेंगे R के बाद P या R के बाद Q। Somewhere in the back of her mind, somewhere in the back of her mind, she knew that the answer क्या, to her question about life lay outside her existing life। आर के बाद पी देखते हैं, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, एंड फिर शी न्यू कुछ अनरिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज दिस। आप इसी पैटर्न पे सॉल्व करके देखना, दोनों पैटर्न पे मिक्स करके क्वेश्चन। इट्स माय गारंटी यू विल बी इजीली able to solve these type of questions based on two tricks I am telling you. One is the SVO, subject verb object। सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ पेयर ऑफ द स्टेटमेंट एंड देन विद द हेल्प ऑफ द पेयर वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक दो क्वेश्चन और ये वाले सॉल्व करवा देती हूँ, सो दैट यू विल गेट द ट्रिक फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। नाउ
वर्क्स ऑफ लिटरेचर इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल लाइज ट्रूथ अबाउट दिस, द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, यू आर एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए। यस, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे एस से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एस अगर हम देखें, द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस पोस्ड बाय ह्यूमैनिटी, इसको कनेक्ट किससे करेंगे, और दूसरा हमारे पास एस क्वेश्चन में नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, ये इनकम्प्लीट सब्जेक्ट है, इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड, inside pages of all good, the right answer is QPRS. Okay, then question number 44, the right answer is, आप लोग इसी पैटर्न पे इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करना ये वाले क्वेश्चंस, I can give you the guarantee of that कि you will be easily able to solve such questions with that fantastic trick. So question number 45, the right answer is SRPQ. Question number 46, there is more than one way to get, है ना, there is more than one way to get the job done. The class decided to organize, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आंसर बता रही हूँ सीधा इसके। The class decided to organize क्या, a picnic, है ना, the class decided to organize a picnic, एक पिकनिक पर हम लोग मिलके चलते हैं और घूम के आते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना रिजल्ट ले आइए, फिर एक पिकनिक पे चलेंगे, घूम के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, द एक्यूज्ड डैश, क्या किया एक्यूज ने, द एक्यूज्ड ट्राइड, वॉज ट्रायल, is under trial, stood trial, हाँ, so the right answer is D. The manner in which the demolition have been carried out dash scrutiny by the high court is under, है ना, उसके अंदर अभी चल रही है, मतलब उसकी ट्रायल। then question number 50, the right answer is I dash consider the opinion of all stakeholder before taking a final decision. I will, है ना, मैं ऐसा करूँगा। So have a nice discussion with you in this year exam of NDA 1 2025. What I personally noticed, I feel that they are taking so many direct questions from your CDS exam, like homophones based question, पैराजम्बल्ड, पहले हम देखते थे तो पैराजम्बल्ड S1 S6 की फॉर्म में ना, बहुत पहले CDS के पेपर में अभी भी आता है S1 S6 की फॉर्मेट पे, इस बार S1 S6 के फॉर्मेट में NDA में भी पूछा गया है। तो आपको CDS के पेपर को फॉलो करना है, उसका PYQ सॉल्व करना है, so that you will definitely go for that, I can guarantee you. Okay, so have a nice day, thank you.